अब आते हैं फोर्थ मेडिटेशन पे, जो हेमी सिंह की चौथी है, रिलीज एंड रिचार्ज। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। शेयर, ओके। Release and recharge teaches you a method you can use daily with or without the tape to release and convert self-imposed emotions. Learned fear can be a useful warning signal, but you no longer need it after you acknowledge the warning. रिलीज और रिचार्ज आपको एक ऐसा तरीका सिखाता है जिसे आप रोजाना टेप के बिना या उसके साथ भी कर सकते हैं। इस्तेमाल करके खुद से पैदा हुई भावनाओं को रिलीज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। सीखा हुआ डर एक काम का चेतावनी संकेत होता है। सीखा हुआ डर एक काम का सीखा हुआ डर एक चेतावनी सिग्नल हो सकता है, लेकिन चेतावनी को समझने के बाद आपको इसकी और जरूरत नहीं रहती, तो इसे छोड़ देना चाहिए। In Focus 10, you can calmly identify and gently release fears, blocks, limits, any interferences to your growth, and replace blocked energy with a pure energy that existed before the limits were imposed. For purpose, बहुत लंबा है, मैं पहले इसको पढ़ लूं फिर हिंदी में पढ़ती हूँ। For Focus 10, you can calmly identify, gently release fears, blocks, limits, any interferences to your growth, and replace blocked energy with the pure energy that existed before the limits were imposed. For purposes of this exercise, fear denotes the primary emotional charge connected to the self-imposed limit, and emotion denotes related feelings. Trust that your larger self knows what you are ready to uncover. Simply follow the instructions and see what comes up for you. If nothing comes, bubble nothing away and accept that the process may be working on deeper levels of consciousness. When you are directed to perceive the memory, the event, you may connect with a specific occasion or with a memory of your prior unlimited experience. Always pull in clean energy as a final step. Here's an example of how energy conversion works. You may perceive a fear of speaking up in groups. Once you have bubbled that away, you perceive the emotion of embarrassment associated with that fear. After releasing both, you reconnect with the joy and gratification you felt as a small child when sharing your experiences with other people. You then reclaim your pleasure in communicating and sharing yourself with others. Once you are comfortable with the exercise as described, you can experiment with deliberately depositing and then retrieving from your box a symbol for anything you believe may be interfering with your progress. Follow all the other instructions. The only difference is that you predetermine what to work with. For example, if you suspect that unconscious fear, one sec, just hold on. Sorry. Once you're comfortable with the exercise as described, you can experiment with deliberately depositing and then retrieving from your box a symbol for anything you believe may be interfering with your progress. Follow all the other instructions. The only difference is that you predetermine what to work with. For example, if you suspect that unconscious fear of separating from the physical body is blocking your progress, place a symbol for this fear, a magic carpet anchored to the ground, into the box, and follow the instructions to release it.
This exercise is not a quick fix or a one-shot panacea. Most self-imposed limits have many layers and will require repeated efforts. And at this time, you can get cramps. But if you truly desire to transcend your limitations, it can greatly facilitate your progress. Take heart from the many people who report it to be among the most valuable exercises of this entire series. Many use it daily to clear out certain current frustrations or disappointments. इन फोकस 10 में आप शांति से उन डर, रुकावटों, सीमाओं और अपनी तरक्की में आने वाली किसी भी बाधा को पहचान सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। साथ ही रुकी हुई ऊर्जा की जगह उस शुद्ध ऊर्जा को ला सकते हैं जो इन सीमाओं को के लगने से पहले मौजूद थी, इन सीमाओं के लगने से पहले मौजूद थी। इस एक्सरसाइज मतलब बचपन में अगर कोई ब्लॉकेज आपके दिमाग ने क्रिएट कर दिया है, कोई डर क्रिएट कर दिया है, उससे पहले आप जिस तरह खुश रहते थे, निडर रहते थे, उन ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लिए डर का मतलब है खुद पर लगाई गई सीमा, शैडोज, परछाइयां से लगाई गई सीमा से जुड़ी मुख्य भावना और उससे जुड़ी हुई भावना, यानी कि उससे जुड़ा हुआ इमोशन। और उसका मतलब है, और इमोशन का मतलब है उससे जुड़ी दूसरी फीलिंग्स। भरोसा रखें कि आपका बड़ा स्वरूप, हायर सेल्फ, जानता है कि आप क्या जानने के लिए तैयार हैं। बस निर्देशों का पालन करें और देखें कि आपके मन में क्या आता है। अगर कुछ भी ना आए तो कुछ नहीं वाली सोच को एक बुलबुले में डालकर दूर कर दें और मान लें कि यह प्रक्रिया शायद चेतना के गहरे स्तरों पर काम कर रही है। जब आपको मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसमें नथिंग लिख दो, क्योंकि कभी कभी कुछ डर, कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ दीवारें, कुछ बाधाएं इतनी गहरी दबी होती हैं कि उनके ऊपरी परतों में कई बार कुछ भी नजर नहीं आता, समझ में नहीं आता। और जब आप करते रहेंगे, जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन में आपको कुछ सुनाई देगा, दिखाई देगा या समझ में आएगा। हो सकता है मेडिटेशन करने के बाद 1-2 दिन बाद कोई ऐसी चीज हो जो उसे ट्रिगर कर दे, ट्रिगर, और ट्रिगर की वजह से फिर से वो डर, गुस्से या किसी और तरीके से बाहर आए। जब वो ऐसा कुछ होता है, या कोई शारीरिक बीमारी, या कोई रोना आ जाए बिना मतलब के, पसीने छूट जाए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मैं कह रही थी कि क्रैम्प आता है ना, मतलब नस पे नस चढ़ जाती है, अड़ जाता है, तो आमतौर पे कहते हैं डिहाइड्रेशन से हुआ। तो कान खींच लो, ये ऐसे उंगली डाल के उसे ऐसे कर लो तो आपका जो क्रैम्प है वो ठीक हो जाएगा। रात को सोते समय कई बार आ जाता है, तो वो एक ब्लॉकेज हो सकती है। जो मेडिटेशन के दौरान अगर आपको क्रैम्प आता है, तो नींद आ जाती है, तो वो एक ब्लॉकेज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसे बार बार तब तक करो जब तक कि वो सारी परतें एक एक करके निकल नहीं जाती, क्योंकि आपका हायर सेल्फ जानता है कि आप कब सबकॉन्शियसली रेडी हो उस गहराई तक पहुंचने के लिए। बस निर्देशों का पालन करें और देखें कि आपके मन में क्या आता है। कुछ नहीं आता है तो नथिंग वाली सोच एक बुलबुले में डालकर उसे हटा दें और मान लें कि ये प्रक्रिया शायद चेतना के गहरे स्तरों पर काम कर रही है। जब आपको किसी याद या घटना को महसूस करने के लिए कहा जाए, तो आप किसी खास मौके या अपने पहले के असीमित अनुभव की याद से जुड़ सकते हैं। आखिर में हमेशा साफ ऊर्जा को अंदर लें। अगर आप ये मेडिटेशन करने से पहले
सोच लें कि मुझे कौन सा डर, कौन सी घटना, तो उसे जर्नल में लिख दें कि मैं ये वाली घटना को रिलीज करना चाहती हूँ, और इस घटना से जुड़ा हुआ थोड़ा सा आप जब लिखेंगे ना, इस घटना से जुड़ा हुआ मेरा डर है। ये डर इसलिए है क्योंकि इस डर की वजह से मुझे ये फीलिंग आती है, और ये फीलिंग इसलिए आती है। ऐसी बहुत सारी, जब आप लिखने लगेंगे, बहुत सारी परतें उतरने लगेंगी। जब आप लिखेंगे, जब आप उसमें एक ही सवाल करना है कि आपको महसूस कैसा होता है, खुद से करना है। मुझे रात को अकेले में बाहर जाने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मुझे छेड़े नहीं या चोरी ना कर ले। अगर कोई ऐसा कर लेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई चोरी कर लेगा तो मुझे इस चीज का डर है कि अ, मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी। अगर पैसों की कमी हो जाएगी तो महसूस कैसा होगा? मुझे गरीबी महसूस होगी या कमी महसूस होगी? कमी महसूस होने से क्या होता है? अगर कमी महसूस होती है तो आपको कैसा लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मैं लायक नहीं हूँ। लोग मुझे, या मैं खुद को अ, पूर्ण नहीं समझूंगी। अगर तुम पूर्ण खुद को नहीं समझोगी, या तुम लोग आपको पूर्ण नहीं समझते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब आप इस तरह से, हाउ डू यू फील, सो हाउ विल यू फील, इस तरह जब आप गहराई तक जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी परतें हैं। जहां आपको आगे कुछ नजर समझ में नहीं आता, वहां रुक जाओ, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। और लास्ट वाला जो था, या उसके बीच में आपको जितने भी इमोशंस फील हुए, आप वो सभी लिख सकते हो एक ही बबल में। मतलब लिख सकते हो कि ये फीलिंग ये वाली है। ये अगर हम लोगों को पहले पता होता कि हमें जर्नलिंग करनी है, तो शायद हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ये करना बहुत आसान होता। पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी गलती है, आई एम वेरी सॉरी। तो कोई खास, कुछ भी बचपन में किसी ने डांटा, किसी ने मारा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बिना मतलब के डांटा और सॉरी नहीं बोला, माना कि हाँ हाँ तेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, लेकिन सॉरी नहीं बोला। आ, किसी ने फिजिकल अब्यूज किया, सेक्सुअल अब्यूज किया, कुछ भी, कोई भी ऐसी घटना अगर आपको याद आती है जो अब भी आपको चुभती है, तो उन घटनाओं की लिस्ट बना के उन सब के साथ आप ये रेजोनेट ट्यूनिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कान में लगाकर ही करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि ऊर्जा बदलने की प्रक्रिया, एनर्जी कन्वर्जन बॉक्स, कैसे काम करती है। हो सकता है कि आपको ग्रुप में बोलने से डर लगता हो, तो यहाँ उदाहरण दिया है। जब आप उस डर को बुलबुले में डालकर दूर कर देते हैं, तो आपको उस डर से जुड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर मैंने लोगों के सामने बोला, किसी ने कुछ बोल दिया, या मैं ठीक से नहीं बोल पाई या गा नहीं पाई, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। उम्र भर के लिए डर बैठ जाता है। एक बार मैं, मुझे गाने का बहुत शौक है, तो पहले गाती गाती भी थी, सीखा भी है। एक बार हो जाता है, कई बार आपकी आवाज सही नहीं होती, आपने रियाज नहीं किया है, गला बैठ जाता है, या आप ऊंचा स्वर नहीं लगा सकते। एक बार मैं कैरियोके में गई, और ऐसे ही गार्डन में होता रहता है, वो लोग थोड़े कैरियोके के माहिर हैं। तो गई, तो मैंने कहा, किसी ने बोला कि आइए आप भी ट्राई कीजिए। तो वहां कोई था, उन्हें पता था कि मुझे गाने का शौक है, उन्होंने बोला हाँ हाँ ये गाती हैं, ट्राई कर सकते हैं। जबकि मैं कैरियोके नहीं किया है मैंने। तो मैं तो वैसे गाती हूँ जैसे आम इंसान गाते हैं, या तो बाथरूम में, या तो फोन पे गाना लगा हुआ है तो उसके साथ में। तो मैंने बोला कि मुझे ये गाना गाना है, उसने बोला नहीं, ये नहीं, आप ये गाओ। मैंने कहा नहीं, ये ऊंचा है, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने बोला नहीं, आप यही गाओ। मैंने वो गाना गाया, और मुझसे गाया नहीं गया। उसके बाद मुझे
ये अभी की बात है, 2 महीने 3 महीने पहले की बात। उसके बाद कैरियोके से इतना डर बैठ गया है, या पब्लिक में गाने से। लेकिन मैंने ये सोचा कि अब मैं ये करना चाहती हूँ कि पहले मैं कैरियोके लाऊंगी, अपने घर में प्रैक्टिस करूंगी, रियाज रोज करूंगी, और फिर मैं वहां जाकर वही गाना गाऊंगी। तो अब मैं इस उम्र में हूं, तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ। कई बार बचपन में ऐसा नहीं सोचता इंसान। बचपन में वो बेइज्जती चुभ जाती है ना, तो वो दिमाग में रह जाती है, तो वो डर पैदा कर देती है, तो हम लोगों को एहसास नहीं होता। तो शर्मिंदगी दोनों को दूर करने के बाद आप उस खुशी और संतुष्टि से फिर से जुड़ते हैं, जो आपको छोटे बच्चे के तौर पर दूसरों के साथ अपने अनुभव शेयर करते समय मिलती थी। फिर आप, इससे पहले मैं नहीं डरती थी, ठीक है, नहीं गाया गया नहीं गाया गया। एक बार मुझे जितेंद्र और वो क्या नाम है उसका, राकेश रोशन और ये शशि रंजन और ये लोग सब बैठे हुए थे, पूरा ग्रुप बैठा था, मतलब उन लोगों के साथ हफ्ते में 2-3 बार पार्टी होती रहती थी। तो एक बार उन लोगों को पुराने गानों का बहुत शौक है। तो उनमें एक इंसान है, वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसे कभी मौका नहीं दिया फिल्मों में गाने का। जितेंद्र ने एक बार मुझे बोला तुम गाओ। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार मैं तो नहीं गा सकती, यहाँ तो इतने तुम लोग अच्छा अच्छा गाते हो, ये इतना अच्छा गाते हैं, पंकज बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं गाती। कहते गाओ, कुछ नहीं होता तो क्या हुआ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे बाप का क्या जाता है, गा लेती हूँ, मेरे को कौन सा कोई गायक चाहिए या रोल चाहिए फिल्म में। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। तो मैंने गाया, अब मैंने गा तो दिया, लेकिन एक तो मेरे फेवरेट गाने जो है ना वो बहुत क्लासिकल है, और ऊपर से मेरी आवाज नहीं निकली, करके इतनी धीरे धीरे गा दिया। तो गा दिया मैंने, पूरा गाना गाया, ये नहीं कि एक आध पैराग्राफ एक आध लाइन, पूरा गाना गाया। तो ऑब्वियसली उन लोगों को लगा होगा कि इसको गाना वाना आता नहीं है, तो गा रही है, पर ठीक है, किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। और वो गाना था, जाने दो, छोड़ो। तो फिर आप दूसरों के साथ बातचीत करने और खुद को शेयर करने की खुशी वापस पा सकते हैं। मैं इसकी बात कर रही थी कि मुझे परवाह नहीं थी कौन क्या सोचता है। इस एपिसोड के बाद मुझे परवाह हुई, उसको हटाना है। जब आप बताई, और वो ऊर्जा वापस लानी है, जब आप बताई गई एक्सरसाइज में सहज हो जाएं, तो आप जानबूझकर अपनी बॉक्स में किसी ऐसी चीज का सिंबल डाल दें, कोई भी निशान अपने, वो जो सोच में आपने बॉक्स रखा है, कल्पना में उस बॉक्स में, तो उसका एक निशानी डाल दें और फिर उसे निकालकर प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपकी तरक्की में बाधा डाल रही है। उस निशानी को वापस निकालकर ट्राई कर सकते हो वापस कि ऐसा आप जो भौतिक जाग मतलब कॉन्शियसनेस में, जो अगर आप जर्नलिंग के साथ में अगर कोई डब्बा रखते हो जिसमें आप अपनी सारे चीजें लिख के रखते हो, उसमें भी ट्राई कर सकते हो। बाकी सभी निर्देशों का पालन करें, बस फर्क इतना है कि आप पहले से तय करते हैं कि किस चीज पर काम करना है। उदाहरण के लिए पहले से आपको तय करना है। उदाहरण के लिए अगर आपको लगता है कि भौतिक शरीर से अलग होने का अनजाना डर आपकी तरक्की में रुकावट डाल रहा है, तो इस डर का कोई सिंबल, जैसे जमीन से जुड़ा जादुई कालीन, बॉक्स में रखें और उसे दूर करने के निर्देशों का पालन करें। जमीन से जुड़ा जादुई कालीन जिस पर आप बैठे हैं, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, उस कालीन को निकाल के डब्बे में रख दो कि अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूं। ये एक्सरसाइज कोई तुरंत ठीक करने वाला उपयोग या हर समस्या का एक ही समाधान नहीं है, नहीं है। खुद पर लगाई गई ज्यादातर सीमाओं की कई परतें होती हैं, और उन्हें दूर करने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सच में अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अपना शैडो वर्क करना चाहते हैं,
जो लोग विक्टिम कॉन्शियसनेस सुन रहे हैं उन लोगों को, या उन्हें इंटरेस्ट है, उन लोगों को ये जरूर करनी चाहिए मेडिटेशन। तो सीमाओं से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी तरक्की में बहुत मदद कर सकती है। उन बहुत से लोगों से हिम्मत लें जो इसे पूरी सीरीज की सबसे कीमती एक्सरसाइज में से एक बताते हैं। कई लोग रोजाना की निराशा या मायूसी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं पिछला 2 और 3 कर रही थी तो ये हुआ कि अचानक मेरा विंडोज क्रैश हो गया और लैपटॉप बंद हो गया। इसकी वजह से एंड में मैं थैंक यू टाटा बाय बाय नहीं बोल सकी, लेकिन पूरा मैंने कर दिया। ओके। तो ये था फोर्थ, ये क्योंकि लंबा था तो मैं इसे अलग रखती हूँ। 5 और 6 ज्यादा लंबे नहीं है, उसका वीडियो मैं अलग बना दूंगी। धन्यवाद। बाय।